So, good afternoon, students. So, today we'll take you through one of the important sessions. And career sessions are something which we keep attending. And it is not that we are not aware, but what one of the important thing is when we talk of a career seminar or we talk of a career option, then the second important question, or rather the most important question, is how to get through. Because today most of the entrances, most of the good options are through entrances. And that is where you get to know how to crack this. So we'll be going through first the major options. See, there are n number of options. We can't go into detail of each and everything. For that, obviously, we'll need one-to-one counseling. Then your psychometric test, aptitude test, your subjects in 9th and 10th, because that is a diagnostic thing which you need to correlate. And then what should be the right option, right? So we'll try to take you through that, and commerce and humanities is most preferred for by me. I mean, today, given the scenario of science, I would not say a student to get into it until they are completely serious about it. It's not that science में options या entrances करना मुश्किल है, but then there are factors which you get to know. And when you come to commerce and humanities, it is not that easy to get into the most coveted colleges. But today we'll give you some tips. And I said in the group also just now, we'll be talking about two subjects which everyone should study, though not in syllabus, to crack any entrance. And for humanities and commerce, it is a big must. But yet we don't study that, or school to padhayega bhi nahi. So today, as I take you through, you can keep jotting down your doubts, and then we'll take it at the end. और वो दो subjects उसको थोड़ा मैं end में detail में करूँगा. So let's get on with the session. ठीक है. And one of the things why I talk about career sessions and I keep taking, I have in my life studied multiple subjects. I studied science, then I took commerce, I did my MBA, law, now data science. So what I keep trying different subjects and get to know about each and every subject. So I have done economics. So what happens is when you know about varied subjects, you also know the problems and you also know that. So it's not that you have to study those many subjects, but today multidisciplinary thing I'll discuss where you should have plan A and plan B, what combinations you should take. And for commerce and humanities, I don't know why we are having two streams. Rather, it should be one, and every child should take subjects, or school should allow in such a way that you have option of both commerce and humanities, which NEP says. So I don't know how schools will deny this year. CBSE has given clear-cut instruction, and NCF talks about that in a very big way, and this year it has to be implemented. And when you will join college, you will also have the option of NEP. So now that 4-year degree course will come into picture, and you will also have the option of taking a break in between. So all this gives you a lot of flexibility, and that is what the paradigm shift is taking place. And by the time you take 12th, all will be in place. So you need to prepare yourself taking that into account. So let me first go through the stereotypes or the regular ones to have a hang of it, और उसके बाद ठीक है. और कई ऐसी बातें भी करेंगे कि कॉमर्स में क्यों हम जाते हैं, अरे मुश्किल है, कौन सी मैथ्स लेनी चाहिए. This is one of the important topics I'll discuss, because many schools I have seen, I've been a dean of a school also. वहां खैर हम लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया. 90% of the schools mislead students in taking core maths. कॉमर्स के बच्चों को फिर आगे जाके पता चलता है, by the time it is too late. So success के लिए today I discuss why it is important. I've studied the subject, and when you will face entrance, it is not core maths that is going to help until unless you are taking some other subjects. तो आपको ये समझना है, आपके लिए applied maths है, हम उसको भी डिस्कस करें. चलो. Now, first, when you take any stream, as I discussed, you should have a clear-cut answer why I am taking. आज की डेट में बस मैं कॉमर्स ले लेती हूँ, मेरी फ्रेंड ने कॉमर्स ली है, मैं भी उसी में चली जाती हूँ. मैथ्स बहुत डिफिकल्ट बताते हैं, साइंस है तो तौबा तौबा, फिजिक्स समझ आती नहीं है, कौन फिर से जंजाल में पड़ेगा, भागो भैया, खत्म हो गई टाइम, है ना. तो अब मैं कॉमर्स ले लेती हूँ, उसमें सब नहीं है. पता हमें है या नहीं है, what is in commerce, what exactly you do, what is the future around.
whether you will love that subject or not, under whose pressure you are taking, it's you who want to take, or it's because of your friends you are taking, or it's because of your parents, right? And believe me one thing, 10th तक की पढ़ाई में don't judge your aptitude, always it's not correct. I have seen many students not doing well in 10th and they take sciences and they do well again, or for that matter not doing in maths well and then they take maths and they do very well. What is the reason? If I get time today I'll come to that, otherwise हम लोग separate session भी रख लेंगे. So why is the most important thing? You must have answer to those questions before you take a subject or a stream, and each thing has to be answered. हम नहीं करते, and I'm very sure many of you who take also are not into that. Then, as I said, who wants to take, which again why maybe a part होगा, and then how do you want to go about? अब देखो, most of the thing is we don't have any concrete plan. हमने ले तो लिया, लेने से कुछ नहीं होता, लेने को तो आप बहुत कुछ ले सकते हो, but what is the use until unless you convert it into a meaningful thing? Now, most of the commerce and humanities students, it's a general observation, ये 3 महीने अप्रैल मई जून ऐसे निकालते हैं जैसे पता नहीं उन्हें फ्री में मिले हो. हार्डली घर में mothers have a tough time telling them कि भैया कुछ पढ़ लो, तुमने तो, आप तो लेक्चर देते हो, 10th में भी यही था, पढ़ाई कर लो, भी रुक जाओ, चिल. आजकल एक वर्ड आ गया चिल, तो ये भी एक चलता रहता है, हो जाएगा ना, आप टेंशन रखो, कूल कर लोगे. So that is what. But as students I'll tell you, I don't want you to be a bookworm, not at all. ये जो पढ़ो इससे नहीं होना. Working smart is better than working hard. And whatever I'll be discussing, I'll be giving you those steps. If you use this April, May, June properly, 2 साल आपको पढ़ाई कम करनी पड़ेगी, बहुत कम करनी पड़ेगी. This 3 golden months, if used, you go ahead and make a career for yourself. And if you lose these 3 months, then you will see September exam. September में आप मेरे को याद करोगे अगर आपने कुछ ऐसा subjects लिए हैं. So don't be a bookworm, but do it properly. So we'll discuss about that also. So how you go about? You have to have a strategy every day, every week एक strategy कि मुझे कितना time किस में देना है, ठीक है ना? अब इंस्टा या हम फेसबुक करते हैं तो कभी किसी को रोकना नहीं पड़ता कि भैया छोड़ दो, थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया है ना, उसमें तो कभी भी किसी को नहीं बोलना पड़ता. और फॉर दैट मैटर यूट्यूब, और फॉर दैट मैटर एनीथिंग यू लाइक, राइट? बट हियर वी नीड टू हैव बैलेंस. थिंग्स आर नॉट इजी. सीयूईटी जैसा एंट्रेंस भी बहुत टफ बना दिया गया है. जो पहले लास्ट ईयर तक एक केक वॉक था, कई बच्चे इजीली ले आते थे. दिस ईयर दे हैव चेंज्ड थिंग्स, एंड बाय द टाइम यू रीच 12th, more changes are on the line. And you have seen your 10th maths paper, how they said competency, they did not give in paper last year, sample paper mein nahi tha, but then you were stumped. And now you need to understand about few subjects which can do like this, ठीक है? And economics is one thing interesting, जहाँ बहुत कुछ scope है, हम लोग discuss करते हैं. So now commerce and arts, we go ahead. Now here 2 important things: without entrance, with entrance. Now without entrance and with entrance means whether you will be studying these subjects in class 11th and 12th without preparing for entrance, or you will simultaneously prepare for entrance, because you know entrance preparation is synonymous with साइंस स्टूडेंट्स. तो डे 1 आते हैं, एकदम ऐसे हो जाता है, साइंस वाला टेंशन में आ जाता है, जेई जा रहा है बेचारा, खाना भी पूरा नहीं खाता, इधर भाग रहा होता है, उधर भाग रहा होता है. कॉमर्स वाले तो टेंशन नहीं लेते होते हैं स्कूल में कि भाई इतना पढ़ता है, करता क्या है क्या इतना पढ़ने को. कहते हैं नहीं हम चिल, हम चलते हैं अपने, है ना, ब्रेक में हम तो एंजॉय कर रहे होते हैं, आधे नहीं कर रहे होते. तो ये भी आपको आज समझना है कि विदाउट एंट्रेंस एंड विद एंट्रेंस का क्या फर्क है, बिकॉज ऑफ सीयूईटी. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ. एंड I'll tell you one fact जो तुम्हारे एकदम दिमाग खोल देगा कि CUET में how many questions you can get wrong out of 200 eligible questions. आपको 200 questions में अगर SRCC जाना है तो कितने questions हम गलत कर सकते हैं. And trust me, just 1 or 2 at the max 3. So 197 questions आपको right लेने हैं, and there is no half mark, there is no 1 mark. MCQ है either full right or full wrong. So that is why you need to decide, and my opinion would be all of you, as we go ahead, those who are preparing for CUET or a college admission to any of the coveted colleges of Delhi or outside India, which we will discuss,
prepare with entrance and how you go about, I'll tell you. And for many subjects, you not even need coaching. ठीक है ना, coaching is just a guidance. ठीक है, हम भी coaching देते हैं, but I believe that is 10% true. The major role is self-study, which we will discuss, and how you can go about cracking. So this is a mind-boggling question. When it comes to fifth subject, इतनी debate होती है साइंस में हो किसी में हो ये फिफ्थ कैसे है, और कॉमर्स वालों और आर्ट्स वालों के लिए I know you will agree with me, ये मैथ्स सबसे बड़ा टेंशन हो जाता है। ये फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ्स ले या मैथ्स नहीं ले, मैथ्स ले नहीं ले, मैथ्स लेते हैं तो करियर ऑप्शंस बढ़ते हैं, मैथ्स नहीं लेते तो करियर ऑप्शंस कम होते हैं, मैथ्स होती नहीं है, अब इतनी बड़ी दिक्कत, मैथ्स होती नहीं, करियर ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, मैथ्स छोड़ते हैं तो करियर ऑप्शंस कम होते हैं, व्हाट टू डू। चलो इसको भी डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस। नाउ this is broadly I'm going into both commerce and humanities, though we'll be discussing subject. One of the subject जो सबसे easy option है physical education, which students have to study less, और थोड़े बहुत अगर आपका sports में interest है, then obviously you take this. Along with commerce, there is so many things you can have career in physical education, which we'll talk later. Then IP. अब कॉमर्स के लिए मैं देख रहा था कुछ पेरेंट्स से इंटरेक्शन कंप्यूटर साइंस बोल रहे हैं, अरे कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर साइंस नहीं होता, कंप्यूटर साइंस इज मेंट फॉर साइंस स्टूडेंट्स। व्हेन वी टेक कॉमर्स वी गो इनटू इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, और वही हमारे लिए आगे यूजफुल होता है इन अकाउंटिंग, इन आवर बिजनेस, दिस इज द वन व्हिच विल हेल्प अस। अब कंप्यूटर साइंस को स्कूल दे देते हैं, अब स्कूल्स का तो क्या है वो अपने हिसाब से भी फिट करते हैं ऐसे ऑप्शन जहां उनके टीचर्स हो और उनकी दिक्कत कम हो। नाउ व्हाई स्कूल्स डोंट ऑफर कोर मैथ्स, आई विल डिस्कस नाउ। सो इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस इज समथिंग यू शुड गो फॉर। मैथ्स छोड़ के आप आईपी ले लीजिए, अगर नहीं हो रही है मैथ्स तो आप आईपी ले लीजिए, यू कैन गो फॉर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, बट in today's world don't go ahead without a computer knowledge. आपको दो चीजें कंप्यूटर्स में आनी चाहिए, एक्सेल बहुत अच्छे से, अगर आप एक्सेल नहीं जानते तो एज अ मैनेजर, एज अ एनालिस्ट यू विल हैव ट्रबल, सो यू डू स्पेंड। और नॉर्मल एक्सेल की बात नहीं कर रहा, पाइवट टेबल्स, वी लुकअप, ये सब चीजें जब तक आप नहीं जानेंगे आपका बिजनेस एक्टिविटी इज नॉट गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग। दैट इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई आईपी एंड ऑल इज इंपॉर्टेंट। देन this is the maths, commerce and humanities should take applied. This is what it correlates or co-links with the courses you will take ahead, not the other maths. Trigonometry मुझे कहीं पढ़ना ही नहीं है कॉमर्स में, कोर मैथ्स क्यों लूंगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते रहो, मेरे तो है ही नहीं कोर्स में, क्यों पढ़ूंगा मैं वेक्टर, मेरे कोर्स में ही नहीं है, आगे जाके बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स कहीं भी नहीं है, 3D नहीं है, मैं क्यों पढ़ूंगा, व्हाई? I'll study which is here. It is a mix of statistics, reasoning, logarithms. That is what you need ahead, बच्चे. Not the other. कभी आप course link देखो और कैसे, मेरी बात मत मानो, leave it. Do one thing. See the course content of applied maths, and फिर जाके BCom honors का syllabus निकालो maths का और देखो उसमें क्या है. Then go ahead and entrances का syllabus निकालो आगे जो होता है commerce से related, उसमें syllabus में क्या है, you will get it. ये एक गलत भावना है एंड कि आप कोर लोगे तो ये है, नथिंग लाइक दैट, दिस इज समथिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब पार्टनरशिप आपको इसमें मिलेगा, उसमें कुछ भी नहीं है। यू सी द सिलेबस एंड देन डिसाइड। आप तो अब ऊपरी ऊपरी चल रहे हो, डोंट ट्रस्ट मी, आई एम सेइंग डोंट ट्रस्ट मी, गो डीप डाइव इनटू इट बिकॉज़ दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड वंस यू टेक दैट यू विल मिस आउट ऑन दिस, एंड दिस इज आल्सो नॉट इजी। आप ये सोचो एक केक वॉक है, ऐसा नहीं है, इट इज मोर लॉजिकल, मोर एप्लीकेटिव वन, and it relates to business and economics. That is what humanities and commerce students have to do. So spend some time distinguishing. और आजकल तो चैट जीपीटी है, उससे भी पूछो कि भाई मैं कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज ले रहा हूँ, मेरे को अप्लाइड मैथ्स लूं या ये लूं, देन क्वेश्चन हिम कि व्हाई अप्लाइड मैथ्स, व्हाट आर द थिंग्स आई नीड टू स्टडी। सीए में भी इसका यूज आना, सीए फाउंडेशन में भी, तो भाई मैं तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, करता हूँ, मैं वो बता रहा हूँ। और अप्लाइड मैथ्स के टीचर्स भी कम हैं जो नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये कोर्स अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, टीचर्स आर नॉट कंफर्टेबल। तो टीचर कंफर्टेबल है कोर मैथ्स में, तो बोलेगा बेटा तू कोर ले ले, क्यों ले ले, क्योंकि मैं भी कोर पढ़ाता हूं तो उसको बिजनेस मिलेगा। माय पॉइंट इज नॉट द बिजनेस, योर करियर। स्कूल में भी यही प्रॉब्लम है, क्यों नहीं देते भगवान जाने, ये देना चाहिए। और आप रिसर्च करोगे तो आई एम 99% श्योर आई विल नॉट गो रॉन्ग। सो डू दैट एंड देन टेक मैथ्स। लीगल स्टडीज,
नाउ एक चीज बता दूं, ये मैं फेवरेट बोलता हूँ वाई एज अ फिफ्थ सब्जेक्ट, पर अब इस बार सीयूईटी ने इसको ड्रॉप किया है, तो जब हम सब्जेक्ट्स करेंगे तो इसका डिस्कस करेंगे। बिकॉज लॉ एज अ करियर ऑप्शन, मतलब मैं कहता हूँ कि जो लोग थोड़ा भी बोल सकते हैं वो भी लें, जो बोल नहीं सकते, सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, वो भी लॉ लें। एक परसेप्शन है लॉ इज रिलेटेड ओनली टू स्पीकिंग, दैट इज नॉट। Law is also related to non-speaking, drafting, and then giving the things. So the things. So as I am going through the journey, I can discuss with you. तो इसके बारे में हम करेंगे. And then others. Now there are so many. Psychology can be one option. Humanities तो लेता ही है, commerce वालों को भी लेना चाहिए. So that is one good option you can go into and open up things. Why I am talking of multidiscipline? Don't bank on one thing today. Have multiple things and you will go and grow ahead. It is not like कि खाली अब साइंस, कितने इंजीनियर्स को जॉब मिल रही है ये भी तो देखो, until unless you are in the top notch, तो फिर वो लोग भी तो उसी लाइन में आ जाते हैं. सो आज हमें कोई डॉक्टर भी ढूंढना होता है, वैसे यार बेस्ट बताओ, nobody goes to something who is fresh, you check everything. टीचर भी होता है तो यार बेस्ट टीचर बताओ, you do so many homework, तो when your career or subjects is there, why don't you do that? Psychology can be an option. I'll discuss about various subjects इसके साथ. तो अभी मैं इससे नहीं जाना. I have a list of subjects where we'll discuss and go ahead. So have you done your homework? So one thing is you need to be crystal clear in mind कि अगर subject लिया है तो you know each and everything. That's why I said go and do if you're searching for maths applied और उसके बीच. Then other subjects, what options we have? So we'll be doing this subject. आज हम एक एक करेंगे तो आपको होमवर्क भी करना है. कुछ दिन बचे हैं, अभी 1 अप्रैल तक तो मस्ती करना है. 1 अप्रैल तक तो मैं पढ़ने को ऐसे भी नहीं कहूंगा. उसके बाद थोड़ी नींद से खोलना, अंगड़ाइयां लेना, देन आगे बढ़ेंगे. But then we'll have a plan, and as we go through, we'll discuss this. Now, subjects. What are the subjects you are taking? What is the pattern in exam? Both in CBSE and entrance. You must know that both are entirely different now. You know, one entirely, मतलब not entirely up to CBSE भी objective और उस base में आ गया. But entrance is completely MCQ and it is more applicative than CBSE. CUET के पेपर्स दोगे, choices इतनी क्लोज होती है कि कई बार हम एज ए टीचर भी सोचते हैं कि इसमें आंसर ये होगा कि ये होगा. वही मीडियन वाला क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं जो 10th में अभी तक तंग कर रहे हैं ना, सबको तंग कर रहा होगा कि उसका आंसर प्रीसीडिंग. Then what are your dream institutes? हम सब्जेक्ट ले रहे हैं, where we get into it, और क्या हम उसमें पहुंच पाएंगे, कितनी सीट्स होती हैं. You need to answer. ये नहीं है कि मैं पढ़ूंगा, मैं SRCC जाऊंगा, मैं LSR भी जाऊंगा. You need to know the number of seats, what probability I will have, what subjects will help me. Because if you don't decide now, then after that it's going to be too late. और कई बच्चे इंस्टीट्यूट्स डिसाइड कर लेते हैं पर ये नहीं पता होता कि उसमें हम आ पाएंगे. आया है इंदौर, लेकिन उसके लिए मैथ्स बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए. So we'll discuss about that also. These are few things. Spend some time. बहुत टाइम है यार, 1 घंटा तो कर लो रोज. आजकल तो गूगल चैट जीपीटी, तुम्हारे और पेरेंट्स और मेरे टाइम तो था ही नहीं. हम सब अपने आप ही कुछ कुछ ढूंढ लेते थे, ठीक है ना. सो यू हैव सो मेनी रिसोर्सेज, और अब तो हम लाइव ग्रुप्स में भी रहते हैं. एंड इट्स नॉट दैट एनीबॉडी आस्क्स एंड आई डोंट रिप्लाई. जब तक टाइम होता है, इतने बच्चे मेरे को प्राइवेटली भी पूछते हैं, मैं उनसे डिस्कस करता हूँ. इट इज नॉट दैट कुछ को लगता है अरे हम तो सर को जानते नहीं, क्या पूछे. See, for me, if anybody needs anything and I can help out, so there is no harm whether you are a student here or you are not a student here. The main thing is to correctly guide you. Okay, so that is what we have. Plan A, Plan B. आज के जमाने में दोनों प्लान रखो. कुछ लोग कहते हैं खाली A रखो, अर्जुन की आंख, जो मछली की आंख देखता था, दो नहीं. But then today's world, if you are multidisciplinary, that is, you must have Plan A, Plan B. और मैं तुम्हें एक interesting fact बताता हूँ. IIM, the most coveted exam for MBA in India, सबसे ज्यादा जो 100 परसेंटाइलर्स आते हैं are from not commerce, IIT. सबसे ज्यादा जो टॉप करते हैं IIM अहमदाबाद को, वो IIT बैकग्राउंड इंजीनियर. अब वो टोटली इंजीनियरिंग से मैनेजमेंट आते हैं. तो प्लान ए भी नहीं है, वो जोड़ लेते हैं विद टेक्निकल नॉलेज मैनेजमेंट. डू गूगल इट. फॉर लास्ट 5 ईयर IIM कैट का एंट्रेंस कंबाइंड एप्टीट्यूड जो ये टेस्ट होता है MBA के लिए, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, कौन उसमें टॉप करते हैं. यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द इंजीनियर, IIT, BITS, Pilani and so on. And why they do it? Because of the 2 subjects जो मैं आपको बताने वाला हूँ. उसमें भी एक सब्जेक्ट सबसे ज्यादा रोल.
Now this is important. What is your aptitude? और हम अपना भी कई बार aptitude check नहीं कर पाते. So इसके लिए आपको correlate करना, whether you like learning or not. So simple is one test. Go to your social science marks and see history, geography, civics, eco 9, 10, how much you used to score, and biology. So if your learning part is good, then most likely you will do well in both. और अगर नहीं है तो you will struggle in both. Similarly, मैथ्स अच्छा है तो फिजिक्स में भी ठीक लगता होगा, और नहीं तो नहीं. और कुछ जगह कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो मेंसुरेशन जैसे टॉपिक्स में हमें अटकना होता है. So here you need to know, though they are proposing in class 12, they will allow calculators for commerce students so that they focus more on concept. जैसे कॉलेज में कैलकुलेटर्स अलाउड है, आपको कैलकुलेशन में दिमाग खराब नहीं करना पड़ेगा. अगर ऐसा हो जाए तब तो it will be good that calculation part will go. So that is what they are planning. So but you need to know your aptitude. How is your aptitude? Your learning is strong, your writing is strong, your speaking is strong, your reading is strong. That is what it needs to be. So as a commerce and humanities, some traits which you should have. One is good reading skill. You need to be a voracious reader. If you are not a voracious reader, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में आपको तंग होना है. देन स्टार्ट योर राइटिंग. इफ यू डोंट हैव दोस राइटिंग स्किल्स, expressive, then commerce and these papers do make you a little bit struggle. So you need to be a good reader as well as a writer, and then an observer, because जितने लोग बिजनेस लेंगे साइंस से आगे टफ होता है. डिसीजन मेकिंग, रियल लाइफ, ठीक है. और बिजनेस कॉमर्स लेंगे तो आप रियल लाइफ से डे वन से कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हिसाब किताब और मार्केट फोर्सेस सब आपको रियल टाइम मिलेगा. तो हाइपोथेटिकल नहीं मिलेगा कि हम लैब में हम केमिकल इक्वेशन कर रहे थे तो 10th पे तो आधे लोग लैब ही नहीं जाते. सो वो हाइपोथेटिकल लगता है हमें. हियर यू विल नॉट गेट दोस हाइपोथेटिकल थिंग्स. ओके. सो स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट, आई विल एक्सप्लेन दिस, जो बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, एंड आई विल ट्राई टू कम टू दिस पॉइंट. सी व्हाट इज स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट का फंडा, वेरी इंपॉर्टेंट. अब समझो. अब सपोज करो कि मैं क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ. मतलब यू आस्क मी एनीथिंग एंड आई नो एनीथिंग, एवरीथिंग अबाउट क्रिकेट. तो मेरा क्रिकेट में क्या हुआ, स्ट्रेंथ या इंटरेस्ट? मेरा इंटरेस्ट बहुत है इसीलिए मैं इतना कुछ जानता हूँ. लेकिन अगर मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ तो शायद मैं सिंपल बॉल फुल टॉस को भी नहीं मार पाता. तो अगर मेरी स्ट्रेंथ होती तो मैं फुल टॉस को भी मार देता. तो अब मैं क्या करियर बनाऊं, ये सोचो. व्हाट करियर शुड आई मेक? अब क्रिकेट में तो मुझे कोई खिलाएगा नहीं, 12th मैन तो छोड़ो, 100th मैन नहीं रखेगा. तो अब मैं क्या करूं? मेरा इंटरेस्ट था क्रिकेट में. अब मैं क्या कर सकता हूं कि मेरा इंटरेस्ट है, मेरे को नॉलेज है, एंड आई कैन स्पीक वेल, so I'll try for commentary of cricket, and that is also a career. Search about Harsha Bhogle, who did from IIMs, most likely Ahmedabad, and has a very good knowledge of cricket. खेलना वेलना उसे इतना नहीं आता, and one of the most earning commentators. So that is how you convert things. अब आपको अपने इंटरेस्ट को स्ट्रेंथ बनाने में कई बार मुश्किल, लेकिन आप अपने स्ट्रेंथ को इंटरेस्ट बना लो. तो मेरा स्ट्रेंथ था नॉलेज, बोलना, और मैंने उसी के हिसाब से अपनी नॉलेज बढ़ाई क्रिकेट में, और मैंने कर लिया. नाउ सपोज 10th क्लास में, लेट अस गो टू एसएसटी साइंस एंड मैथ्स, आवर्स वर्सेस मार्क्स. एक स्टूडेंट को हम हाइपोथेटिकली ले रहे, 2 आवर्स पर डे लेता है और वो 90 ले आता है, ठीक है. यहाँ पे 4 आवर्स लेता है, वो 85 ला रहा है. यहाँ पे 6 आवर्स लेता है, वो 80, 82 ऐसे. Now one thing it is very clear, the number of times devoted to maths is बहुत ज्यादा स्टूडेंट से, लेकिन बेचारे के मार्क्स अभी भी 82 इसमें आए. यहाँ पे वो टाइम ऑब्जर्व करेंगे, इसके पे 2 घंटे लगाते हैं और स्कोरिंग 90. दैट मींस तुम्हें ज्यादा पसंद भी नहीं है एसएसटी, तुम थोड़ा भी पढ़ते हो, एक्सप्रेस कर लेते हो और तुम लिखाते हो. यू आर नॉट ए बुक वॉर्म, बट यू हैव आइडिया. जो समझा तुमने अपने वर्ड्स में लिखा, और टीचर आजकल उसके नंबर दे देते हैं. तो नाउ हियर इंटरेस्ट बच्चे का मैथ्स में है, और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, एसएसटी. तो व्हाट वुड बी आइडियल फॉर द चाइल्ड? आइडियल क्या होगा? आइडियल इट वुड बी, आइडियली ही शुड मेक स्ट्रेंथ इंटरेस्ट. मतलब वो ह्यूमैनिटीज फील्ड में चला जाए तो definitely he will do more. Why he will struggle out here? Because after putting this many hours we are not getting it, then definitely it's difficult. So try to convert strength into interest. अगर interest को strength बना लेंगे, मैं अगर क्रिकेट में knowledge थी तब आता था, और suppose मैं खेलने चला गया तो जिंदगी बर्बाद कर लेता, कुछ नहीं होता. So that is important.
you need to convert strength into interest. Understand this is important. You will need some time to get this concept. Check. How different class 11th and 12th? साइंस तो इसीलिए आधे छोड़ देते हैं कि भैया गलती से मत ले लेना, और जैसे इस बार हल्ला हो रहा है फिजिक्स पेपर, तो अरे बाबा तोबा नहीं लेना. It is different. There is a gap to jump. You know, that is the reason students don't do well. अगर 10th में थोड़ा और इसको career oriented बना दे 9th 10th में, changing streams, introducing accounts, students will do much better. But I don't know why CBSE is sitting still waiting for things to happen. अब अगर ये सही implement कर ले NEP, I think commerce should be introduced in 9th like I see. You get hang of things, you get into it, and that is how you go. And again, I'll discuss a subject why it is not taught and asked in every entrance exam, and even IIT students should do it. उसके बाद so 10th से 11th 12th बहुत different है. कोर्स कंटेंट चाहे आप मैथ्स ले लो, इकोनॉमिक्स तो तुम्हें पूरा नया अलग वो वाली इकोनॉमिक्स वाला पार्ट नहीं है. इट इज मोर ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड विद स्टैटिस्टिक्स. थोड़ा बहुत इंडियन इकोनॉमिक्स है, बट देयर माइट बी चेंजिंग. अभी सिलेबस नहीं आया, सो आई एम वेटिंग. इकोनॉमिक्स के सिलेबस में CUET में चेंज हो गया है, तो दे माइट चेंज फॉर यू आल्सो 11th में. So still we are awaiting the new syllabus which is going to come, what all they are deleting, what all they are adding, because CUET ने this year they have introduced, last year भी था, पर इस बार उन्होंने 11th का syllabus भी डाल दिया इको का, और half 12th का हटा दिया. बाकी usually CUET has only 12th syllabus. So 11th is different. Commerce वालों के लिए new subject है. In terms of accountancy they have never done. It is all about हिसाब किताब, कितने पैसे मिले, कितने गए, किसको दिया, keeping a record. So it's a record keeping of entries, what comes in and goes out, which you will learn, and very interesting and practical subject, और आप उसको बहुत enjoy भी करेंगे. Then economics, microeconomics is lovely, and when you learn macro, it will be learning. So you will learn about the aspects कि why Russia has so much gold reserve, ठीक है ना, और जब oil के प्राइस कम होते हैं या ये होते हैं, क्यों रशिया गोल्ड बेचता है और उसके प्राइस को इफेक्ट होता है. You will study interesting things in economics, right? Then you have business studies, which is all about management, right? These are the few subjects. और इसी तरह आर्ट्स में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. So arts में we'll discuss so many interesting subjects which we take. So 11th and 12th are different. Bigger पढ़े अगर कहीं नंबर आता है, so any place where success comes before work is dictionary and class 10. Class 10 में थोड़ा बहुत पढ़ लो, हो जाता है. खाली मैथ्स ने तंग किया, बाकी सब में तो सब लोगों को लगा पूरे साल इतना क्यों पढ़ा. थोड़ी बहुत सब्सिस्टी होता है, सिलेबस ज्यादा होता है, पेपर वाज इजी. 11th and 12th is not like this. Now they have made application based. Thinking ability, direct question नहीं है, formula डालो आंसर पाओ वाला हाल नहीं है. They give choices very close. So you need to be clear with the concepts. Your graphs have to be strong if you are in economics. So start thinking about graph. अब हमारे देश में यही तो मुश्किल है. अब हम यहाँ से अगर CP जाते हैं उबर करके, और हमें कोई पूछे उसका ग्राफ कैसा होगा जो चार्जेस ले रहा है, तो 99% नहीं बता पाएंगे कि उसका ग्राफ कैसा होगा. लीनियर इक्वेशन में हम क्वेश्चन करते हैं फिक्स चार्ज एंड देन वेरिएबल चार्ज, उसी का क्वेश्चन. तो अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं, तो वो ग्राफ फिक्स्ड ऐसे और ऐसे जाएगा, सोच के देखना कभी. लेकिन नहीं बना पाते. क्यों ऐसे जाएगा? जैसे आप ओला उबर में बैठते हो, वो कहते हैं मीटर डाउन, चाहे तुम 10 मीटर जाओ इतना लूंगा. सो से फॉर 3 किलोमीटर दे आर चार्जिंग फिक्स, व्हिच इज दिस ग्राफ शोइंग कि 3 किलोमीटर तक जाओगे तो इतने रुपीस लेंगे, and then per kilometer 5 rupees. So therefore this graph will be. So now economics is all about graph. Your graphical knowledge has to be good. So that is what you will learn. यही करियर में होता है. आधे करियर काउंसलर्स क्या करते हैं, ऊपर होता है. They don't go down to subject. You need to be clear. All about curves, parabolas. Those things will come into economics. और 11th 12th की को कुछ भी नहीं. जब आप इको ऑनर्स की इको पढ़ोगे, वो रियल इको है जहां मैथ्स का यूज होता है. इन 11th 12th we don't have any maths का यूज in economics, but when you will do ahead the beautiful subject BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हैं आप लोग, क्योंकि BSc इको ऑनर्स आप नहीं करते, it has more maths, तो BA इको ऑनर्स करते हो, that is very needed. So that, and forget कि अब बहुत लर्निंग रह गया, चाहे साइकोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, 50% पेपर इज एप्लीकेशन बेस्ड. सो यू डोंट हैव टू गेट टेंस कि मैं सब्जेक्ट ले लूं और उसमें लर्निंग भी बहुत होगी. नो मोर.
So here we come all about getting your dream institute. What you have to do, ठीक है, हमको क्या क्या करना है, हमको पता करना है हम जिस ड्रीम इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं उसमें कोई कट ऑफ स्कोर है, लास्ट ईयर कितना कट ऑफ रहा, किस परसेंटाइल पे एडमिशन मिला, दैट इज योर बेंचमार्क कि राउंड अबाउट उसी के इधर उधर रहता है, एक्सेप्ट कोई मेजर चेंजेस ना आ जाए, कोई एक्स फैक्टर ना आ जाए। जैसे इस बार एक्स फैक्टर क्या आ गया, CUET they have removed all choices, so this year cutoff is going to be low, and they have also done subjects with reduction, so there is a X factor for anything to change, otherwise it's not going to change too much. Next, rank versus score, आपका रैंक क्या आता है उसमें, स्कोर क्या देते हैं, क्योंकि CUET is now online for example, so within 1 month it is conducted, so someone X appearing for CUET on 15th May, say out of 800 he has scored 790, and someone sorry out of 800 मैं ये कहता हूँ कि 750 लिया, and someone who appeared on 15th June got 780. Now जब रैंक आएगा 750 वाला में भी ऊपर and 780 में भी नीचे, because the normalization. अब एक आदमी को 1 महीना एक्स्ट्रा मिला और एक को कम मिला, so that factor has to be accounted. फिर हर शिफ्ट में डिफिकल्टी लेवल क्या है, how do you judge that, हर शिफ्ट में how much the topper has scored, so the rank versus score, at what rank what score you get, and then you have to average out in exams which are spread over a period of time. Then rank versus institute, at which rank or maybe score you will get your dream institute or not, that is important कि मेरे कितने आ जाए I'll be able to get into it, so you need to do homework and then you start preparing and see where you are reaching, you need to have confidence. और कॉमर्स वाले अगर आज मेरी बात मान लेंगे, ह्यूमैनिटीज वाले, ऐसा कोई एंट्रेंस नहीं होगा तुम 2 साल बाद क्रैक नहीं करोगे, वीक में ओनली 1 डे इज रिक्वायर्ड फॉर देम, इफ यू स्टार्ट गिविंग वीक में 1 डे फ्रॉम 11, आराम से आंख बंद करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एंड और 2 सब्जेक्ट्स वो हम डिस्कस करेंगे। चलो, आई होप यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड, लेक्चर देते जा रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि इतना लेक्चर सुन चुके हैं, अब होता है, आई होप ऑल ओके चल रहा है, पता नहीं, अरे कुछ बता दो, थोड़ा सा लाइट रखें, ऑल ओके, सारे ऐसे टेंशन से सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं, चलो तो बोलते हैं तो नहीं, घर में प्रॉब्लम है चुप नहीं होता, और ऐसे प्रॉब्लम होती है, अरे सब ऐसे बैठे हैं कि कोई बोले चुप, एकदम टाइट में माइक नहीं खुल जाए, माइक तो एकदम बंद है रूम से, ये घर में तुम कुछ अलग होते हो, बाहर कुछ अलग होते हो, फ्रेंड इतने कैरेक्टर्स है भाई तुम्हारे भी, चलिए कोई बात नहीं, इनकी थोड़ी सी जांच पड़ताल करना, रेडीमेड तो मैं भी ले आऊंगा क्योंकि तुम्हें पका पकाया खाने की आदत है, try spending some time about your college, उसके रिव्यूज, रैंक कैसे है, जहां जितना दुख वहां उतना सुख, तो टुडे इट मे बी लिटिल पेनफुल बट यू विल गेन, और जहां इजी एंट्री है वहां फिर एग्जिट में कुछ नहीं मिलता, और जहां एंट्री मुश्किल है वहां एग्जिट बहुत अच्छा। सो नाउ व्हाट इज द स्ट्रैटेजी टू क्रैक, ठीक है, सो अब एक बार बता दो, यू वांट मी टू टेल दोस 2 सब्जेक्ट्स अभी या बाद में, अरे कुछ तो बोलो, कोई कुछ नहीं बोल रहा, एवरीबडी सो टाइटली कि भाई मैं कुछ बोलूंगा, इतने लोग हैं क्या बोलेंगे, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल इंटरैक्टिव, सी दिस इज व्हाट आवर इंडिया हैज प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्लास में भी तुम चुप बैठे रहते हो, ऐसे चुप बैठे रहते हो, कोई पूछ लेगा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कोई पूछो क्या कर रहे हैं, अरे ओपन अप डिस्कस, देन यू गेट टू लर्न, देयर इज नो हार्म, नोबडी वाज बोर्न विद एवरीथिंग। चलो एक मैसेज आया कि भाई अभी बताइए, चलिए बस एक ही ने बोला, बाकी कोई नहीं, चलो I'll tell you about those 2 subjects which we don't teach but asked in every exam, IIT जैसे एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता और उसके बगैर डेवलप ही नहीं होता, हमसे कहा जाता है एप्टीट्यूड, साइंस लोग तुम्हारा एप्लीकेशन प्रॉब्लम स्किल्स एंड ऑल, देखो इधर पूछा नहीं, so let me come to the first subject. ये सब्जेक्ट सबको पढ़ना है, अगर तुमको एंट्रेंसेस आगे जिंदगी में एमबीए तक क्रैक करने हैं, हर एंट्रेंस में एनालिटिकल या मैं ये कहूं लॉजिकल रीजनिंग,
आता है and none of the school teaches this. Each entrance has coding, puzzles, cubes, blood relations. So इतने क्वेश्चंस हैं और जब तुम करोगे रोज वीक में 1 घंटा ही करो, ठीक है ना. दिस ईयर आई एम रनिंग ए स्पेशल कोर्स ऑन दिस कि भाई बहुत मिनिमम टाइम में मैं सबको कहूंगा एक कोर्स करो ताकि 10 से 15 घंटे में तुम्हारा हो जाए, फिर तुम खुद करते रहो. बट दिस विल गिव यू इमेज. ईच एंट्रेंस हैज दिस. सीयूईटी में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, कैट में तो एक सेक्शन होता है एमबीए के पेपर में, एंड दिस ओपन्स अप योर एप्लीकेटिव ब्रेन. दिस इज वन सेक्शन. और इसके साथ जो हम रीजनिंग को ले रहे हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, ये रीजनिंग आपको करनी है. कोर्स को छोड़ दो. 1 से वीक इज इनफ. 2 आवर्स दैट इज इनफ. अगर तुम 1 से वीक करोगे, मान लो 52 संडे, 100 आवर्स. 100 आवर्स में विल बी चैंपियन 11th में. एंड 12th में जब एंट्रेंस है, कोई कोचिंग की भी फिर जरूरत नहीं है. बेसिक कोर्स 10 से 15 घंटे का होगा. जब तुम्हें हैंग मिल जाएगा, खुद करो. सी ज्वाइनिंग, कोई कहता है मैं प्रथम कर लूं, कोई कहता है मैं आईएमएस कर लूं, करियर लॉन्चर, कुछ नहीं होना. अगर तुम सेल्फ स्टडी कर लो और बेसिक है तुम्हारा, ना सिलेक्शन हो तो बताना. बट ओनली थिंग इज, एंड में जाके तुम सोचते हो मैं कर लूं, कोई घोट के पिला दे, कुछ नहीं होगा. कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में यू हैव एम्पल टाइम. 2 आवर्स आस्किंग इन ए वीक फॉर दिस. एंड एक सब्जेक्ट जो तुम्हें कैट क्रैक कराएगा आगे, यू हैव टू बी डूइंग दिस रीडिंग. एंड रीडिंग क्या? न्यूज़पेपर्स. अब न्यूज़पेपर में क्या? दिल्ली टाइम्स में पढ़ लो, है ना. Who is करीना कपूर और what is gossip, page 3 में. Read headlines, read editorials. If you become a voracious reader, go to any CAT का पेपर. मैं कह रहा हूँ मेरी बात मत मानो, leave it यार. Don't trust me. Go search Google CAT English पेपर. ऐसे कॉम्प्रिहेंशन देते हैं. जब तक आप वोरेशियस रीडर नहीं होगे, आएगा नहीं. सीयूईटी के इंग्लिश में क्या है? फुल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन. सो डेवलप दैट. एंड एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर्स, तुम्हारा जीके डेवलप होगा. करंट अफेयर्स का पेपर आता है, तो भाई करंट अफेयर्स एक दिन में मैं तुमको क्या एक इतनी बड़ी बुक दे दूंगा, विल यू बी एबल टू लर्न इन 1 month? Forget it. That is the misconception you all have. Start from today regularly reading. और जो इकोनॉमिक्स लेंगे उनको ये पेपर जरूर लगाना है. इकोनॉमिक टाइम्स इनिशियली समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, बट ग्रेजुअली जब सब्जेक्ट पढ़ो 2 साल बाद, कहीं ना कहीं इसको कोरिलेट करो. बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं. स्टॉक मार्केट पढ़ो. क्यों स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है? अरे कॉमर्स कर रहे हो, पैसे तो कमाने हैं. स्टॉक मार्केट में दुनिया पैसा लगाती है. सो व्हाई डोंट यू डेवलप द इंटरेस्ट? एंड ऑफ द डे, इफ यू नो ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट, तो हो सकता है तुम 12th के बाद भी थोड़ी थोड़ी सेविंग्स भी करके, हल्का हल्का, बहुत ज्यादा नहीं, बट विदाउट नॉलेज इट, ट्राई टू नो अबाउट दैट मार्केट. इट्स ब्यूटीफुल. अगर तुम्हें बहुत लालच नहीं है तो स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम नहीं होती. इट्स ओनली व्हेन यू गो इनटू द ग्रीड यू फॉल इनटू द ट्रैप. सो दिस इज समथिंग यू स्टार्ट डूइंग. कोचिंग कैन नॉट हेल्प, एंड दिस इज समथिंग व्हिच विल कम. अगेन आई एम सेइंग डोंट ट्रस्ट मी. तो आईपी मैट का पेपर ले लो जो आईआईएम इंदौर करती है. सीयूईटी का पेपर ले लो. इवन कैट का पेपर ले लो. अगर ये चीजें वहां ना मिले तो बता, ठीक है. दैट इज वेयर द डिफरेंस इज गोइंग टू लाई. एंड व्हाई आई एम सेइंग इवन फॉर साइंस स्टूडेंट्स, क्योंकि जब फिजिक्स में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो सोच ही नहीं पाते. दिस इज वेयर यू विल सी कि वो जो 15 घंटे का कोर्स होगा, बहुत छोटा सा कोर्स है, उसमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसके बेसिस पे फिर तुम अपने आप बहुत सारा कुछ कर सकते हो. एंड देन यू विल सी योर थिंकिंग लेवल हैज गॉन एक्स. वो जो मैथ्स का पेपर आया था वो इजीली कर लेते तुम. प्रॉब्लम इज इंट्रोड्यूस नहीं कर. आर यू गेटिंग इट? इसके बारे में और जानना होगा, यू कैन डिस्कस इट, बट दिस टू इज समथिंग एंड यू हैव टू बी अ वोरेशियस रीडर. इसके अलावा कोई नहीं है. ये कोचिंग से डेवलप नहीं हो सकता. लेट इट मेक क्लियर, राइट? सो नाउ वी गो अहेड. एंट्रेंस एग्जाम्स आफ्टर क्लास 10 कुछ है ये, बाकी हम बहुत सारे और देखेंगे. सीयूईटी, क्लैट, बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ये डीयू करता है. बीबीए नार्सी मोंजी ये सब करते हैं. तो बीबीए, बीएमएस ये सब सब्स्टिट्यूट है विद लिटिल हियर एंड देयर. होटल मैनेजमेंट आईआईएम आईपी मैट करता है. द बेस्ट इज आईआईएम इंदौर. अब रोहतक ने भी शुरू कर दिया और जम्मू ने भी शुरू किया है. सो IIM is coming into 5-year course, so you get an MBA degree. It's an integrated course which we'll talk.
And SAT, of course, the gateway, IELTS and SAT, those who want to go abroad. Again, English section, वहाँ सुनना भी पड़ता है. You have a reading section, you have a hearing section there. There are two subjects, English and Maths, and they have changed the pattern. पहले subjective होता था, अब उन्होंने objective कर दिया. Few entrances, and since this has come, कई entrances खत्म हो गए, right? और इसमें चेंज पैटर्न है. आज मैं किसी ग्रुप में एक करियर का डाला था, पढ़ रहा था. अब उसमें ये लिखा है कि अपडेटेड है सीबीएसई, पर जब मैंने पढ़ा तो उन्होंने 3 साल पुराना सारा एंट्रेंस का डाल रखा है, कोई अपडेट नहीं किया. सो यू हैव टू बी अपडेटेड विद टाइम कि क्या क्या चेंजेस आ गए, एंड दोस चेंजेस डू मेक अ डिफरेंस. नाउ करियर ऑप्शन व्हेन वी सी अबाउट कॉमर्स, वन ऑफ द थिंग आई जस्ट गो, आज मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जा सकता क्योंकि हमारा सेशन ही बहुत चला जाएगा और तब तक सब सो जाएंगे. अभी कोई नहीं बोल रहा, थोड़ी देर में मैं अकेला बोल रहा हूँ, बाकी क्लास खाली होगी. हाँ, तुम लोग भी सो जाओ. सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आज का नहीं तो एवरग्रीन. कॉमर्स पहले खाली एक ही ऑप्शन होता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ और उसकी बहुत इज्जत होती थी, सीए क्लियर कर लो. और आज भी सीए क्लियर करना आसान है. इसीलिए सीए जो लेते हैं वो मैथ्स जरूर लें, क्योंकि विदाउट मैथ्स सीए हो जाती है. मैथ्स का थोड़ा एक ही पेपर है, लेकिन इट विल हेल्प यू. एंड कौन सी मैथ्स? अप्लाइड मैथ्स. गलती से कोर मैथ्स लेके सीए में मत घुसना, फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा. कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, एक कंपनी जैसे सेक्रेटरी रखते हैं ना, तो कंपनी भी रखती है. ये उनके लीगल अफेयर्स, कंपनी की फाइलिंग, ये सब चीजें. फाइलिंग मतलब अब आप जैसे पढ़ोगे तब मैं पढ़ाऊं, कंपनी जब अपना प्रॉफिट करती है, कुछ चीजें करती है, सीए उसके अकाउंट्स तैयार करता है, सही टाइम पे फाइलिंग, लीगल मैटर्स, कई सारे कंपनी सेक्रेटरी के रोल है. दो दिस करियर हैज नॉट कम अप लाइक सीए. सीए में तो 3 लेवल है, फाउंडेशन, इंटर एंड देन यू गो फॉर फाइनल. फाउंडेशन यू कैन गिव राइट आफ्टर 12. तुम्हारे 12 के बाद मई और दिसंबर नवंबर में ये 2 बार एग्जाम होते हैं. देन यू ज्वाइन इंटर. अब इंटर इज द सेकंड ग्रुप वेयर यू हैव 2 ग्रुप्स, यू कैन अपीयर साइमल्टेनियसली, और after that and you also have to do articleship. That is the good part. You go to a firm and you practice there, you learn as a CA, and then once you complete it you get a diploma level. पहले नहीं देते थे. And then final जब कर लिया तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, लेकिन इतना इजी नहीं होता. सीए में मेहनत होती है. And then you have law. Law मेरा इसलिए पसंदीदा है कि it is not that you have to go to court. Today corporate law is doing very well, and like engineering it has various fields: cyber law, intellectual property law, इंश्योरेंस लॉ. सो सिविल, क्रिमिनल, इतने सारे लॉ हैं. क्रिमिनोलॉजी एक अलग चीज आ जाती है. तो लॉ में इतने ब्रांचेस हैं कि वंस यू स्टार्ट डूइंग इट you get a lot of career options. You can be with a company supporting them, drafting them. It's not that you go, you take all legal matters का care. अब अंबानी जैसी कंपनियां, रिलायंस है, they have battery of lawyers, someone to represent in the court, someone to take care of the small legal matters. So law is a beautiful thing, and today you have most of the courses 5 years, BA, LLB, and CLAT जो है, that is the most coveted exam. जितने भी एमएलयूज हैं वो सब, जैसे आईआईटी, एनआईटी हम कहते हैं, सब जेई मेन से होता है. एनएलयू जितने हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, ऑल आर अंडर क्लैट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सो मेनी कॉलेजेस. ओपी जिंदल है, मुंबई में है, डीवाई पाटिल है, सोमैया है, नारसी मोहनजी है. मतलब इतने लॉ कॉलेजेस हैं. एमिटी का लॉ अच्छा है. सो देयर आर नॉट डर्थ ऑफ इट, एंड यू हैव such good option, but you have to be a good speaker, you have to use your intelligence, and you must know AI today, क्योंकि आज AI के उससे you can be a very big lawyer, you can take assistance and get everything. जेठ मलानी जब कोर्ट में खड़े होते थे, अब तो नहीं रहे, 2 मिनट के 15 लाख 20 लाख. कपिल सिब्बल की फीस अभी 25 लाख चल रही है. हमने केस में अप्रोच किया था न्यूटन. मुकुल रोहतगी we engaged in 2022. He charged 70 lakhs for 2 minutes of hearing in Supreme Court. So you see the amount they get, but not ऐसे. उन्होंने काम किया, अपने आप को establish किया, and that is what it is. So today lawyers choose out very quality work and they work according to that. So law में your political science, legal aptitude, yeah. And if you take this as a subject, even when you are appearing for UPSC, you get. एंड जो लोग ये 2 कॉम्बो कर लेते हैं बेस्ट, तो बल्ले बल्ले है.
अगर CS प्लस लॉ कर लिया तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन होगा, मतलब यू गो लाइक एनीथिंग। और इसीलिए मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करता हूँ। और इसकी बात तो मैं बता दूं एक्चुअलियल साइंस, इफ योर मैथ्स इज गुड एंड यू बिकम एक्चुअली, so there is nothing. What does they do? They talk about all insurance sectors. जितने इंश्योरेंस में प्रीमियम्स होते हैं, फिक्स होते हैं, ये सब एक्चुअलियल साइंस से होता है। मैथ्स और स्टैट्स आना चाहिए। लंदन में है इसका इंस्टीट्यूट और मुंबई में ब्रांच है जो रजिस्टर करते हैं। 15 पेपर ही क्लियर करने पड़ते हैं 3 साल में, लेकिन होते नहीं है। और हो गया तो बहुत बढ़िया। और कई लोग, बहुत कम है जो एक्चुअली बनते हैं। अगर ये बन गया और गलती से उसने लॉ और ये कर रखा है, मतलब तुम स्काई इज द लिमिट। इंजीनियरिंग वगैरह कुछ नहीं रह जाती। इंजीनियर की पे क्या है एवरेज, देखो साल की 8 लाख 10 लाख, अगर अच्छे से नहीं किया। यहाँ पर तो स्काई इज द लिमिट, स्काई। अगर आप बहुत अच्छे राइटर हैं, बोलना नहीं आता, यू राइट, यू ड्राफ्ट, यू कंपोज सो वेल, देन आल्सो इट इज, इट्स नॉट दैट यू हैव टू स्पीक, बट अगर आप राइटिंग और स्पीकिंग दोनों करते हैं तो आई मीन नथिंग लाइक दिस। ओनली थिंग इज, और एनालिटिकल रीजनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट। Why I'm saying that subject, all of them help here. And trust me, when you will do, and others who have not done in your peer group, you will know the difference where you stand. That is what, and this is all by experience. This is all by real and practical experience I'm talking. BBA, आजकल कई पेरेंट्स भी बहुत कुछ पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, पर वो रिसर्च पेपर है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थोड़ी की है उन्होंने। तो इसीलिए कई लोग पढ़ते बहुत है, ये कर लो उससे ये हो जाएगा, वहां चले जाओ। मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकली सेल्फ स्टडी करो, खुद लगो, तुम्हारे को रिजल्ट भी मिलेगा एंड यू विल एंजॉय। जीके, रीडिंग, रीजनिंग, यू विल बी किंग। एंड इंग्लिश को मत छोड़ो, इंग्लिश इज समथिंग टुडे व्हिच इज यूज्ड। तो ये सब सब्जेक्ट्स के बाद आप लोग कोई भी बीबीए, बीएमएस, दिस ऑल आर छोटा भाई ऑफ एमबीए। तो एमबीए मास्टर्स होता है, बीबीए उसमें अंडर ग्रेजुएट है। सो व्हाट यू गेट टू अर्न इन, अब ये बीएफआई इन्होंने खत्म कर दिया, इन्होंने फाइनेंस का कोर्स चला दिया। दिस इज अ ब्यूटीफुल कोर्स लीडिंग टू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, नाम चेंज कर दिया बस डीयू ने, और ये बीएमएस भी डीयू में, लेकिन इसके लिए मैथ्स इज ए मस्ट। कोर अप्लाइड की बात नहीं है, कोई भी मैथ्स 12th में होनी चाहिए तभी है। इसके लिए मैथ्स कंपल्सरी नहीं है। ज्यादातर नारसिंह मोहनजी, अंबेडकर, आईकी, कई सारे सिंबॉयसिस चलाता है, वो 10th तक की मैथ्स लेते हैं। और लॉ में भी 10th तक की मैथ्स चाहिए। देयर इज हार्डली यू हैव मैथ्स, बट देन लॉ में एनालिटिकल रीजनिंग, जीके भी देते हैं तो पैराग्राफ और रीजनिंग बेस्ड होता है, इसीलिए रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे मेक यू रीड ए लॉट। होटल मैनेजमेंट, होटल इंडस्ट्री है, those who have hospitality के लिए, then here patience is the key. आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, गुस्से वाले लोग इधर ना आए, ठीक है। एंड एंट्रेंस में अभी एक ही बार मैं दिखा दूंगा। टीचिंग, कई लोगों को पूछो कोई टीचर बनना चाहता है, हाथ किसी का खड़ा नहीं। टीचिंग टुडे इज अ बिग पेइंग जॉब, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट स्कूल की कुछ जगह फीस अगर आप देखोगे 1 लाख से ऊपर एक टीचर को मिल रहा है, और जो नया पे कमीशन आ जाएगा तो ऊपर चला ही जाएगा। और अगर आप लेक्चरर बन जाते हैं डीयू या कोई गवर्नमेंट में, तो 2 लाख 2.5 लाख, एंड विद पर्क्स, एलटीसी, कई सारी चीजें आती हैं। एंड for females while it's good, for as a girl child you finish your work by 2 to 30 and then you can balance both. And banking sector that is little demanding, but teaching sector you enjoy a lot, and there is a dearth of good teachers in India. आप खुद अपने लिए ढूंढिए सब्जेक्ट, टीचर्स तो बहुत हैं, मिलते ही नहीं अच्छे टीचर्स। That is where you need to see if you are well spoken, you have that inclination, तुम्हें लगता है मैं अपने दोस्तों को अच्छे से पढ़ा लेती हूँ, तो टीचिंग इज अपकमिंग। आईआईटी में भी तो प्रोफेसर हैं, तुम जहां पे जा रहे हो लॉ में भी तो प्रोफेसर हैं। अगर टीचिंग ही बंद हो जाएगी तो पढ़ाने वाला नहीं रहेगा, तो कैसे आओगे। सो दिस इज व्हाट टुडे वी आर शॉर्ट ऑफ टीचर्स। टीचिंग इज वन लाइन वेयर यू गेट वेल पेड, easily 80,000 to 1 lakh over 2 months vacation, so many things you get. So teaching is something, B.Ed करो, CTAT करो, and then you're in. So by the time you go, ये salaries बहुत high होने वाली। And then the coaching industry, you just see a teacher and then evening में पढ़ाते हैं, so it's a big package, it is not a less। हाँ बस हमको लगता है डॉक्टर, इंजीनियर, सीए का नाम बड़ा होता है। choose the subject not the college, success is where you are satisfied। अगर मुझे खुशी है तो सक्सेसफुल है।
मैं तो कहता हूँ परफॉर्मिंग आर्ट्स किसी में भी जाओ ना जिसमें टैलेंट है, तुम क्यों सोचते हो कि भाई वो पूछेगा क्या करते हो? तुम खुश होने चाहिए, दूसरे की खुशी मत देखो। इफ यू आर सेटिस्फाइड, सिंगिंग इज गुड, पेंटिंग इज गुड, एनीथिंग इज गुड यार, गो अहेड। डोंट लुक। डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट में, अगर हमारे पॉलिटिक्स में किसी चीज ने सबसे ज्यादा रोल प्ले किया है, डिजिटल मार्केटिंग। एंटायर पार्टी इज हायरिंग सो मेनी थिंग्स एंड पीपल पुटिंग इनटू ब्रेक। टुडे आप एफबी खोलो, इंस्टा खोलो, फुल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। दिस इज सच ए अपकमिंग फील्ड एंड यू डोंट नीड मच क्वालिफिकेशन। यू जस्ट नीड टू बी एड क्रिएटर। कई लोग डिजाइन में जाते हैं, एडवर्टीजमेंट में जाते हैं। यहाँ तो सिंपल डिजाइन क्रिएट करो, शूट योर एफबी एड and then go for it. Google search engine operations, basic things. So today you can sitting at home earn into lakhs। और पहले HR इसकी वैकेंसी नहीं थी, अब वैकेंसीज में डिजिटल मार्केटिंग आती है। लैंग्वेजेस, now you know the role of languages is important. If you are an MBA and going to France and you know French, your value increases. So today, if you just do simple languages too, French or maybe German along with that, Chinese, तो क्या है, Chinese language कर लो, you can do anything, you get into it। JNU is a very good institute for doing masters। तो languages में भी हमारे यहाँ बहुत स्कोप है। I mean, just don't think of something कि बस यही करेंगे तो आएगा, right? So eligibility now, see most of the good colleges have entrance, so you have most of the colleges where there is there, so CUET covers most of the things। और कुछ का अपना होता है CLAT, ये लो एंट्रेंसेस फॉर DU, नॉट DU एग्जैक्टली, द्वारका में कॉलेज है, एंड CUET के अंडर हम DU का जो लॉ कॉलेज अभी शुरू हुआ है लास्ट ईयर से, that comes under CUET। और इस साल तक तो they are not asking law in it, but from next year they will ask, because law college has said you are asking or taking students based on any subject, there is no law out here when you are testing। So from next year they will change, so तुम्हारे तक आ जाएगा। So this are all, and this entrances usually happen in December month, so before you take your boards they happen, so you need to be little well prepared for them। As a subject combo, this is I'm showing commerce, and this is you can opt for it। These are the few subjects you can go as a good combination। चार subjects so clear हो जाते हैं, it is only 5 more, so you can go for IP, you can go for applied math, legal studies, psychology, physical। Now legal study has been dropped from CUET। पहले CUET में legal studies का पेपर होता था, from this year they have dropped, and even entrepreneurship, so this year they have made 2 changes। EP has gone, नहीं तो EP का भी पेपर होता था, now that is no। So these are few career options to list जो मैंने बोला था। Now more are coming। Cost accounting, like chartered accountancy, there is also cost accountancy। Then you have certified financial planner। अब आप देखो कि जैसे इवेंट मैनेजर्स होते हैं, प्लानर्स होते हैं, पैसों की प्लानिंग कौन करेगा, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, तो प्लानर्स, मर्चेंट बैंकर्स। अब जब हम कोई IPO लेके आते हैं, अब IPO मतलब कंपनी का आप देखोगे ऐड देता है कि भाई मेरे इशू आ रहा है, आप सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब का मतलब बिकम मेंबर ऑफ दिस एंड गिव मनी, एंड योर मनी यूज करके मैं कोई बिजनेस करके आपको प्रॉफिट करके, मेरे को बिजनेस नहीं आता, तो रिलायंस ने बोला कि मेरे शेयर खरीद लो, तो मैंने उसके शेयर खरीदे। ये सब प्लानिंग जो आती है, वो पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ यूज होगा, प्लानर्स एंड दे हैव बिग टाइम। चार्टर्ड CFA, जैसे इंडिया में CA होता है, बाहर CFA होता है, and this has more value in terms, it is globally recognized, and it's a tough course, you can enroll just as CA is that, and then you continue with that path। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, जब मैं वो जैसे मैं ये कह रहा था कि प्लानिंग करते हैं, रिस्क फैक्टर देखते हैं कि अभी हम IPO लाएंगे, अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि उसमें खर्चा भी होता है। सो दिस इज डन, एंड नॉर्मली ग्रेजुएशन के साथ साथ या बाद में भी लोग कर लेते हैं। यू गेट एडिशनल डिग्री, that is your professional skills, so these are very short courses। then BCom pass and honors, अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो पास। इस साल DU ने अलाउ कर दिया विदाउट मैथ्स, बट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर इफ यू डोंट हैव मैथ्स, BCom ऑनर्स DU में नहीं मिलेगा बाय द टाइम यू गेट आउट। एक और साल शायद दे दें, क्योंकि इस बार जो 11th में है उन्होंने भी मैथ्स नहीं ली, तो 26 बैच तक तो DU अलाउ करेगा, बट 27 बैच को, यानी तुम्हारे बैच को
बीकॉम ऑनर्स लेने नहीं देगा अगर मैथ्स नहीं हुई, सीयूईटी में कंपलसरी होगा। हाँ, बीकॉम पास गुड। तो बीकॉम पास के साथ क्या कर सकते हैं आप, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करो अगर बीकॉम पास कर रहे हो, और ऑनर्स कर रहे हो तो तुम सीए लो। ऑनर्स के साथ सीए होता है और पास के साथ सीएस और लॉ, दैट गोज विद इकोनॉमिक्स। बीए पास, मैथ्स की जरूरत नहीं है। बीए ऑनर्स है तो एप्लीकेटिव। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड बीएससी। व्हेन यू टेक बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, यू आर मोर इनटू क्वालिटी एप्लीकेशन एंड दिस। व्हेन यू आर इनटू बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स, देन you are into more of mathematical thing, more of calculation thing, more of statistics. So that is the difference. Though this has little more value than BA, but हम ज्यादातर BA economics करते हैं and then we go ahead. So बहुत कम फर्क है, don't worry on that. Then फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब ऐसा मार्केट जैसे हम सब्जी मार्केट जाते हैं, क्या मिलती है वहां, सब्जी। तो जब फाइनेंशियल मार्केट जाओगे तो तुम्हारे लिए नई चीजें सीखने को मिलेंगी। शेयर क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो इट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स। Banking and insurance, we all know LIC, health insurance. So that is another field where commerce students come, and that is where applied maths helps. थोड़ा सा ये होता है कि वहाँ कैलकुलेशन होती है, here this, and that is where logical reasoning helps. So these are then stock market and investment. Though CBSE is not promoting 11th 12th में course promote होना चाहिए बच्चों के लिए, so that you get into a career option right after 12th also. Entrepreneurship and startups, you know, so many startups, so you become an entrepreneur. गिव योर प्लान हुआ था ना, कौन सा शार्क वार्क आता है, शार्क टैंक, है ना। और वहीं पे हमारा स्टूडेंट तो नहीं था, हर सिस्टर स्टडी रश्मीत ग्रोवर, तो उसके साथ तो हम क्रिकेट खेलते थे। ही वाज इन 12th, आई जस्ट स्टार्टेड माय करियर एंड देन ही यूज्ड टू कम फॉर डाउट्स, तब वो फिजी जाता था एंड देन ही गॉट इनटू इंजीनियरिंग। उसकी बहन थी आशिमा ग्रोवर, इवन भुवम बाम ही स्टडीड एट आवर प्लेस। तो startups, and this is one time favorite for humanities, commerce भी, civil services। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, आईआईटी वाले काफी सिविल सर्विस भी करते हैं, but what subjects they choose while appearing for civil service means arts. Arts is the most sought after subject जो हम सिविल सर्विसेज में लेते हैं, because easy to clear, easy to write। तो आईआईटी वाला भी अपना सब्जेक्ट नहीं लेता, तब ह्यूमैनिटीज इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर सिविल सर्विस क्रैक करना। So you see humanities and this is important. Army, if you have maths, you can get into army. Navy में PCM चाहिए, इंडियन आर्मी जानी है तो आपको maths चाहिए। And then international trade, आप कुतुब इंस्टीट्यूट है, IIFT, Indian Institute of Foreign Trade. So that is a big field where you see how trade is done internationally. Exports कैसे होते हैं, shipping businesses कैसे चलते हैं, so you have knowledge of that. That is international trade. So many career options and all भी होंगे, right? So e-commerce आज के डेट में Amazon कितना अच्छा कर रहा है, to know all about e-commerce, how the e-commerce business runs, you know. So that is how you see today after COVID, with technology, with this ChatGPT coming up, so many things have changed. And by the time you are there, 5 साल में तो इतने नए जॉब्स आ जाएंगे जो आज थे भी नहीं। अब आप बताओ, आज इतना कोर्स आता है, डू ChatGPT, डू एक्सेल। पहले तो इसकी हम इतनी बात ही नहीं करते थे कि ChatGPT जैसा कुछ कोर्स कर लो एंड ऑल। So by the time you are there, you will have so much consultancy courses coming, so much advisory work from home. You don't have to struggle too much. इतना head break करने की जरूरत नहीं है। Now we come to arts. Fashion designing, NIFT, most sought after pearl. So that is what you have, and इनके लिए भी हम subject options देंगे, economics, career, law। economics के साथ maths होना चाहिए, तभी humanities को career मिलेगा। Teaching, almost same, air hostess, those who want to go for that। Counseling can be done even by commerce students। Today we do need psychologists, counselors in school compulsory कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट कंपल्सरी कर रहा हूँ, जर्नलिज्म। और आज की डेट में मैं बताऊं, आई एम एसोसिएटेड विद मीडिया अ लॉट। सो आई यूज्ड टू सी, जो मेरे रिपोर्टर्स हैं, जो कई मेरे फ्रेंड्स भी हैं, दे यूज्ड टू बी इन टाइम्स ऑफ इंडिया, HT, इंडियन एक्सप्रेस। ज्यादातर लोगों ने छोड़ के ई पेपर प्रिंट ले लिया, करियर 360 ले लिया, मिंट ले लिया। सो दे आर जॉइनिंग देयर एंड डूइंग अ वेरी गुड जॉब। तो पहले कोविड के पहले, वेयर डिड यू फाइंड ई न्यूज़पेपर्स? टुडे ई न्यूज़पेपर्स are doing much better in terms of this। Then languages, humanities वाले languages करते हैं, CUET में तो 2 लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन भी है।
So this is what it is. Eligibility obviously एक यूसिड मैंने छोड़ दिया क्योंकि यूसिड आईआईटी कराता है, ठीक है ना, तो दैट इज आल्सो अ वेरी गुड एग्जाम बट इट्स अ टफ विद गुड मैथ्स नॉलेज. सो क्लैट entrance, this all has entrances, so most of them you will find CUET. okay, so most of the जो ऐसे courses हैं वहां पे अब डायरेक्ट हट गया है, डायरेक्ट कुछ जगह है, there are colleges, मिठी बाई है, बहुत अच्छा कॉलेज है, डिस्कस होगा. Now these are beautiful subjects for commerce students, art students. So these are few subjects you can opt apart from that. Though common be history, geography, pol science, sociology, psychology. लीगल स्टडीज हर स्कूल में होता नहीं है, ये दोनों सब्जेक्ट्स अब सीयूईटी ने हटा दिए, तो ये भी देखना when you will appear. सीयूईटी has made one change, आपके पास सब्जेक्ट है या नहीं, you can appear for that. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब मैंने सब्जेक्ट पढ़ा नहीं and I want to appear, I won't be doing that much. So that is the problem with this too, but प्लाट में इन सब में तो इसका यूज है. Then applied maths, in my opinion, humanities should be taking applied maths. आप आज चेक कर लेना, और कहीं किसी को कोई गलत इंफॉर्मेशन या कोई यू आर नॉट एग्रीइंग कि नहीं सर यहाँ तो ऐसा लिखा है, डिस्कस. Then fine arts, obviously those who want to go for design and all, that is the paper, and then economics obviously. So these are few subject options, general जो आप opt कर सकते हैं, otherwise music, dance, physical education is also allowed in CUET. So मतलब वो subjects भी वो लोग ले लेते हैं, तो you can opt for physical education, you can appear for a paper. Best of 4 लेते हैं, language plus this. So as a career options, this is what we go into the humanities. So Bachelor of Arts, BA in Pol Science. Pol Science is एक सब्जेक्ट जो मैं कहता हूँ कॉमर्स वालों को भी लेना चाहिए, अगर स्कूल को अलाउ करना भी चाहिए एनईपी में, एंड पोल साइंस जरूर लो. पोल साइंस लेने से योर ऑप्शंस इंक्रीज. आईएएस की भी कोचिंग करनी है, पोल साइंस से आता है, लॉ में भी बहुत हेल्प मिलती है कभी मन बना, पॉलिटिकल एनालिस्ट. सो व्हाट हैपेंस इज पॉलिटिकल साइंस पढ़ के अगर तुम्हारा थोड़ा भी सिविक्स और उसमें है, दैट हेल्प, ठीक है. देन सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, सो यहाँ पे आप ऑनर्स कोर्सेज सब कर सकते हैं. डीयू में गुड नंबर ऑफ कॉलेजेस, एंड अपार्ट फ्रॉम डीयू दैट आल्सो विल बी गुड. सो दिस आर फ्यू कोर्सेज व्हिच social work today there's a rising demand and people are doing social work. social work का increase हो गया, पहले मुझे लगता था social work बेकार है. So Tata Institute of Social Science, कभी Google करके देखना, you find lot of institutes coming up. B.Ed भी 4 year degree course कर दिया. Event management, अगर बैंड बाजा बारात देखी है तो आज event managers are earning like anything. ये मत सोचना ये कम है. If you are a big event manager, सब्यसाची, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, इनके ड्रेसेस देखो कितने की आती हैं, रोहित बाली, दो लोग, ऋतु बेरी, ये सब फैशन वर्ल्ड में क्या कर दिया इन्होंने. सो यू सी देयर इज नो लिमिट. 20-20 लाख के लहंगे, 25 लाख के लहंगे, 35 लाख के लहंगे, फैशन डिजाइन. सो यू सी देयर इज सक्सेस एंड मनी. इट इज नॉट दैट कि यार उसमें नहीं है, आपकी क्रिएटिविटी है. इफ यू कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू कैन डेवलप समथिंग, इट इज देयर. साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कुछ नहीं है. Right, so BA honors, not BSc. I will recommend until unless you have. So BSc honors में hardcore maths. Then liberal arts. Today liberal arts we talk of. See, arts is all about culture, your expression, and all. That is what humanities. It's all about study of the behavior. Anthropology ले गया, या anthropology you can do. Study of humankind. So today liberal arts gives you a lot of liberal things. You can do any study with subjects, so it's not limited to one, and that is what you should be. और तुम्हारे टाइम में तुम 2 साल पढ़ो, take a break from DU or something, do little work and then go ahead. And when you go for research abroad, you do get scholarships also, and with this 4-year degree course, India's courses are going to be more recognized. Before we had 1 year less. So now the break option is good. You can take a break for a period, come back, your school are safe, and again you can do it. And today, as I said, even I am studying, so you all can continue. So there is what harm. You can keep updating your knowledge and your memory gets sharper. Okay. So these are few courses, and civil services में सबसे ज्यादा यूसेज इसका. अब अगर सिविल सर्विसेज का मन है तो ज्योग्राफी और पोल साइंस जरूर लेना. इफ यू आर एवर प्लानिंग, वहां जनरल जो पेपर आता है प्रीलिम्स का जो होता है मेन से पहले, ज्योग्राफी, और इससे बहुत आपको हेल्प मिलती है. सो दैट इज समथिंग व्हिच दे हैव. सो ज्योग्राफी, पोल साइंस इज गोइंग टू, हिस्ट्री इज अ गुड सब्जेक्ट. तो ये सब चीजें वहां पे जनरली पूछी जाती हैं.
So that is what it is. So career options, and जब नेट का पेपर देते हो तब भी लॉजिकल रीजनिंग, ये जो सोशल साइंस है, RBIS में कौन सी बुक्स पढ़ते हैं? 9th 10th SST की बुक्स, 8th 9th 10th, those are the books. अब गूगल पे लो the best books for studying for IAS general, so they will say NCERT, और हमने जो एक्सट्रैक्ट बनाई है, that is now order of the day. Everything is out. You go paragraph by paragraph, and that is, and we are taking extract further. By May, will be coming out for pole science, geography, कॉमर्स. कॉमर्स में इकोनॉमिक्स में क्योंकि एनसीईआरटी ने इस साल कुछ अपडेट होके आ गई तो अलग बात है, अदरवाइज एनसीईआरटी आज तक कभी तक किसी ने यूज नहीं की. संदीप गर्ग की किताब ज्यादा चलती है इकोनॉमिक्स में, इजी लैंग्वेज, हैज लॉट ऑफ वैरायटी. अकाउंट्स में गरेवाल और गोयल की किताब चलती है, तुलसियान डिफिकल्ट हो जाती है तो इसलिए गोयल और उसकी किताब चलती है. और एमएल अग्रवाल अप्लाइड मैथ्स में चलती है, वहां आर डी शर्मा नहीं चलती है. और कोर मैथ्स अगर ले रहे हैं तो आर डी शर्मा चलती है. सो दिस आर फ्यू बुक्स व्हिच यू कैन हैव. ज्योग्राफी, पोल साइंस, हिस्ट्री, एनसीईआरटी. और जब उसकी एक्सट्रैक्ट आ जाएगी, इट विल बिकम इजी फॉर यू टू क्रैक सीयूईटी बिकॉज दे गो लाइन बाय लाइन एंड आस्क क्वेश्चंस. And this is one thing which is coming up, content writer. So today content writer has a lot of value. Though ChatGPT has come in, it assists, but then still ChatGPT cannot do everything. अब हमने ChatGPT को 10th मैथ्स के क्वेश्चन में डाले थे, वो 10th मैथ्स के क्वेश्चन नहीं कर पाया, कि ये स्टडी गलत किया, मीडियन वाला सवाल गलत किया. So ChatGPT also needs assistance. It's a long way to go. So without human intervention, nothing is there. So you do a course in AI. अब तुम Excel, AI, रीजनिंग, रीडिंग ये मत छोड़ना. दिस इज व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द डे. आगे आके इनका बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है. और आप चैट जीपीटी से या इन सब से सीखिए, स्टार्ट कन्वर्सिंग, ठीक है. इट विल डू हेल्प यू ए लॉट, बट डोंट फॉलो ब्लाइंडली. यू हैव टू टेक असिस्टेंस ऑफ टीचर्स. क्लैट का या कोई भी एंट्रेंस होता है, आई विल एक्सप्लेन यू. इंग्लिश इज कॉमन, मतलब तुम लॉ दो, बीबीए दो, एचएम दो, मास कॉम दो, ये दो, इंग्लिश सब में आएगा. तो अगर तुम इसके लिए पढ़ रहे हो तो ये ऑलरेडी कवर्ड है, सबका कॉमन. रीजनिंग का पेपर, नाउ व्हेन यू सी रीजनिंग, यू सी इट विल कम, जो मैं पेपर बोल रहा था सारे एंट्रेंस में आता है. क्वांटिटेटिव, इसमें 10th लेवल तक का आता है. 10th लेवल, इट्स ओनली 12th लेवल. यहां अगर आया तो थोड़ा बहुत, अदरवाइज मेरी जगह आता नहीं. जनरल नॉलेज, नाउ यू सी everywhere you have this general knowledge, current affairs. Now if you are going for a BMS paper, they may ask you कि who is the head of Reliance, so they want to know your aptitude कि तुम्हें बिजनेस के बारे में कुछ पता भी है या नहीं. नहीं है तो फिर तुम क्यों करने आए हो? लॉ कर रहे हैं तो who is the first chief justice of India, when was this law introduced, they ask you basics. So that is why every paper, like I am going for a BMS, I will do English, reasoning, quantitative, जनरल, और जो ऑप्शनल पेपर होगा वो मेरा बिजनेस एप्टीट्यूड होगा. They will check my business aptitude in the 5th section. So that is how this exams go. Are you getting my point? So this is what it is everywhere. The 5th paper is different. यहाँ पर ये इसको चेंज कर दे. But now changes भी आए हैं. जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया, तो वहां पर उन्होंने क्या कर दिया है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में they are asking English, then quantitative maths, क्योंकि 10 तक की मैथ्स एप्टीट्यूड में, and then they go to ask general, and they are devising the subjects. इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है लीगल में कि सीयूईटी में आप लीगल नहीं पूछ रहे, तो क्लैट में तो पूछ रहे हैं. सो बाय द टाइम यू रीच, दे विल डू लिटिल मोर मॉडिफिकेशन इन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. पर अगर आप बीएमएस का पेपर दे रहे हैं, कोर्स ऑप्ट किया है, तो उसमें बिजनेस एप्टीट्यूड आएगा. ठीक है. सो दैट इज द थिंग कि कॉमर्स वालों के लिए इतना इजी हो जाता है, एक एंट्रेंस पढ़ो तो बाकी कॉमन ही है. एंड साइंस वाले दे कैन टेक ऑल एंट्रेंस एक्सेप्ट मेडिकल. ठीक है ना, बायोलॉजी नहीं है तो साइंस वालों को एडवांटेज होता है, सब दे सकते हैं. कॉमर्स वाले साइंस के एंट्रेंस नहीं दे सकते, साइंस वाले दे सकते हैं, और कई लोग लॉ का पेपर देते भी हैं. मैं जानता हूँ एक स्टूडेंट को लास्ट ईयर जो 1.5 साल तक एलएन करता रहा और वहां से बर्बाद हुआ, और उसने फिर लॉ का शुरू किया. ही क्रैक्ड क्लैट and is into Calcutta Law School. So that is what I am saying. Coaching is just a guidance. You should take it, but not depend on it. The moment you start depending entirely on coaching, that is your success story begins. Go for self-study. That is the success.
एंड ट्राई स्पेंडिंग टाइम कि हाँ मुझे करना है। और जब लॉजिकल रीजनिंग करोगे तो ये सब चीजें होती है। प्रॉब्लम इज वी हैव नॉट बीन यूज्ड और टॉट दैट वे, एंड दैट इज वेयर वी नाउ। एक सिंपल क्वेश्चन है, मैं पूछता हूँ स्टूडेंट्स को, हाउ मेनी मंथ्स हैव 30 डेज? तो बच्चे काउंट करते हैं, उनको बताते हैं, कोई 5, कोई भाई क्वेश्चन सुनो, हाउ मेनी हैव 30 डेज? खाली फरवरी में तो 30 नहीं होते, 11 is the answer. So you have to develop your thinking skill, go fast, judgment. That is what they want at their level. So this is something you need to develop. So I'm just saying कि भाई ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं चारों स्ट्रीम में कॉमन जो हम लेते हैं। This is what the entire common subjects, ठीक है? I might have missed some, but this is what we have as a common subject for the 4 streams which students choose, and you can get the 5th. आपको 6th लेना है तो ले सकते हैं, as a maths additional thing you can give, ठीक है? So you can go it. But the success mantra is how you study. कभी एक चीज देखना, 1 to the power 365 कितना होता है? क्या पूछ रहे हो सर? 1 ही होता है। तो कोई बताएगा 1.01 to the power 365 क्या होता है? So if you calculate 1.01 to the power 365, it is 37 point something. What does this mean? 1.01 means 1 plus 1%. So if you increase 1% effort every day, your output increases by 37%. Just see. What is the problem is तुम सोचते रहते हो, अच्छा कर लेंगे, अभी तो एग्जाम दूर है, और जब एग्जाम आता है तो तुम ऐसे पढ़ते हो कि बस पूछो मत। सो एवरी डे इफ यू कैन हैव अ प्लान, 2-2 घंटे निकालो, ऐश भी करो, एंड गो अहेड एंड डोंट नेग्लेक्ट फिजिकल फिटनेस। वो 2 साल में बहुत प्रॉब्लम करती है। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू 2 years if you can get out of social media, इंस्टाग्राम, फेसबुक, नॉट यूट्यूब स्टडिंग वाला, वो तो काम का है, लेकिन ये जो इंस्टाग्राम होते हैं, अरे उसने मेरे लाइक नहीं किया, अरे उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, पूरा दिन तो इसी में निकाल देते हो। और फिर एंड ऑफ द डे एआई है, वो तुमको पकड़ लेता है, एनीथिंग यू लाइक इट विल कीप शोइंग यू। हम ही लोग नहीं निकल पाते, तुम्हें क्या बोलूं। गेमिंग 2 साल में इसको कम कर दो या अर्न करो, डू सोशल फास्टिंग कि आज हम नोटिफिकेशन हटाते हैं, एक दिन नहीं करना। दिस विल मेक अ डिफरेंस। और अर्न की मैं 3 घंटे पढ़ूंगी तो आधा घंटा चलो देखूंगी। तुम तो ऐसे ग्रांटेड लेते हो ना कि बस, दैट इज वेयर ये सक्सेस नहीं आती है। देन यू स्ट्रगल आफ्टर, ओ फिर एक दिन एग्जाम रिजल्ट नहीं आया, मैं पढ़ूंगी बहुत अच्छे से पढ़ूंगी, फिर तो 2 दिन तक तो ऐसा रहता है, फिर जोश खत्म, होश में अपने वैसे। सिस्टमैटिक, रेगुलर, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, यू मेक इट डिफिकल्ट, ठीक है? और अगर 1.0137 कभी देखना 0.99 1% कम करो, so that comes to 0.26 something. 97% your output reduces if you reduce 1%. So think about it. और मैं अभी कॉमर्स वालों पे एक फंडा बताता हूँ, जरा देखना, ये तो आप लोगों ने देख लिया होगा। See now I can't go, Christ यूनिवर्सिटी है। अब मैं ये 1 to 1 में ही आपको डीप कर सकता हूँ, इतने सारे करियर ऑप्शंस, लीडिंग इंस्टीट्यूशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप ये देखिए बहुत सारे हैं। अब मैं ये ऑब्वियसली आई कांट गो इनटू डिटेल अभी, यू कैन सी द थिंग विल कीप एक्सटेंडिंग। दिस आर द courses, opportunities, subjects you need, the leading institutes and the eligibility criteria. Likewise, see. So we have so many this, and this, and this, and this is where we. So if you want to discuss, you can get in touch with us. Then obviously I'll have to do 1-to-1 thing, and then only we can advise you where you can go, which all options you can keep, and things like that. This is for humanities, where you can take this as a course. This is the job opportunity. These are the subjects. These are the leading institutions, and this. So at the end, I have other institutes where good courses apart from Delhi is there, right? So you have careers in all this. These are the career options, and this is what we go ahead and do. And these are the subjects which we need. And you will see for BA courses, CUET coming in most of the places. So journalism, even our Jamia has good journalism. ठीक है ना? DU में भी अच्छा है. So journalism is something, news anchors, इनकी तुम सैलरी सुनोगे तो हिल जाओगे, ठीक है ना? तो इनकी सैलरीज बियॉन्ड वो हो गई आजकल. So TV journalism is not like पुराना वाला. So
And this is one good institute if you do journalism, Indian Institute of Mass Communication, कुतुब रोड में ही है दिल्ली में, हमारे तो बहुत पास है मालवीय नगर के, so that is there. So this Christ University is very good with so many. Ashoka University is very good for humanities student. अशोका आप जा सकते हैं, अशोका बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है प्राइवेट. So finance, fashion designing, event management, foreign language. So there are so many courses and options and this. So there's so many things which is out here. Now these are the top 20 universities or colleges जो आप जाएंगे. Obviously हमारा श्रीराम कॉलेज और लेडी श्रीराम टॉप में है. लॉयला कॉलेज बहुत अच्छा है चेन्नई. सेंट जेवियर्स मुंबई और कोलकाता दोनों अच्छा है. क्राइस्ट यूनिवर्सिटी अच्छा है. हिंदू कॉलेज इज वेल नोन. हंसराज का अगर हम रैंकिंग करें तो एसआरसीसी कॉमर्स में और इको के फिर हिंदू आ जाता है. ह्यूमैनिटीज में हिंदू की वैल्यू बहुत है. आप करना रैंकिंग, हिंदू हैज अ वेरी गुड वैल्यू. हंसराज इज गुड फॉर कॉमर्स. देन यू हैव नारसी मौजी, इसके भी कोर्सेज बहुत अच्छे हैं. मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज इज गुड, बट यहाँ रिजर्वेशन है. जैसे डीयू में तो हमें रिजर्वेशन नहीं मिलता, पर स्टेट यूनिवर्सिटी में होता है. सो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज इज गुड, पर हम जाएंगे वहां पे नहीं. The Loyola College is good, Saint Xavier's is good, Christ में बहुत options है. Then you have Symbiosis बहुत अच्छा है, Saint Joseph's भी अच्छा है, Presidency, Ramjas थोड़ा मैं कॉमर्स के लिए एडवाइस नहीं करूंगा, मोर इनटू साइंस. इंद्रप्रस्था बहुत अच्छा है. मिरांडा हाउस मिस हो गया. मिठी बाई इज ए वेरी गुड कॉलेज, मिठी बाई बहुत अच्छा है. तो और एक सुलाबाई पूना, उसका नाम नहीं आया होगा, कहीं आ जाएगा, तो वो भी बहुत अच्छे कॉलेजेस है. दिस इज ह्यूमैनिटीज. अब आप देखिए जेएनयू, डीयू, अशोका यूनिवर्सिटी बड़ा अच्छा है. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज गुड, इट हैज लॉट ऑफ गुड कोर्सेज. जामिया इज वेरी गुड, जर्नलिज्म का कोर्स बहुत अच्छा है इसका. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सोशल साइंसेस. कोलकाता है, नॉट मेनी ऑफ अस गो आउट देयर. क्राइस्ट यू कैन सी. सिम्बी के बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, एंट्रेंसेस होता है इसका. So these are good universities. I mean, apart from DU also. अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी अच्छे कोर्सेज डाले हैं. बाय द टाइम यू का बहुत अच्छा हो जाएगा. लॉयला कॉलेज अगेन, सेंट जेवियर है, फर्गूसन भी अच्छा है. दिस इज गुड. ये देखो सावित्री भाई फुले, यही मैं बोल रहा था, सावित्री भाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, ये भी अच्छा कॉलेज है. तो हम डीयू तो सुनते रहते हैं, उसके अपार्ट ये ऑफ द बीट इतने बढ़िया कॉलेजेस हैं. आप नाम गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा. तो देखिए कुछ लीडिंग ऑफ द बीट कॉलेजेस, जिसमें मेरा क्राइस्ट छूट गया हो तो पता नहीं, क्योंकि लिस्ट बना रहा था वहां आ गया. सीएमआई क्रिश्चियन, लॉयला, आईएसआई एंड दिस. ये तो खैर ऑब्वियसली साइंसेस के लिए, दिस इज फॉर साइंस, दिस इज फॉर साइंस, यू डोंट हैव टू थिंक. ये बाकी हमारे कॉमर्स के कोर्सेज हैं. सो गुड कॉलेजेस अपार्ट फ्रॉम डीयू. यहाँ डीयू का नाम इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि डीयू को छोड़ के मैं इनकी कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ. ठीक है ना. तो ये है. Now, as a summing up, I will tell you कि you have to make up your mind clear. Don't make yourself inferior. 10th को भूल जाइए, 10th के बेसिस पे ये नहीं होगा. Make firm. और अभी भी 11th में मैथ्स हो जाती है, ऐसा कहीं नहीं होता नहीं होगी. मैं 30 years करियर हो गया मैथ्स में, so it is not that कि I will tell you something wrong. अगर एक बार ट्राई करना कर लो, छोड़ देना. जब तक एलओसी नहीं भरा जाएगा तब तक तुम कोई भी सब्जेक्ट चेंज करोगे, कोई मना नहीं करेगा. एडिशनल लेके 2-3 महीने में 1 महीना देख लो, चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा तो छोड़ दो, बट स्टडी इन अ प्रॉपर वे. तुम कॉन्सेप्ट पे. फ्यू लाइंस टू एंड. आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया. आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया. This should be the attitude. Nothing is going to stop you guys. So that's it from me for the time being. Already I have extended my time, and thank you so much for the patience you had. Because I know listening is such a difficult job. It's not easy, right? So thank you very much. If you have few questions, I'll take it up. Otherwise, I've explained in brief about subjects, about this, how you go about it. If anyone has few questions, I'll take it up. Otherwise, we'll wind it up. Legal studies, one question I have from Hirday. It's not essential for giving CLAT, but when you will tackle the questions, you will get those topics. So अगर आपने legal studies पढ़ा है तो आपको easy होगा, नहीं तो CLAT में जो जो chapters आते हैं आपको पढ़ा दिए जाएंगे.
So it is not that legal studies लेने की जरूरत है. Let me see my chat box because बोलते कम है, मैं सब लिखते ज्यादा है, मैं देख लूँ. Okay, okay. Now, anyone else has any question? कोई क्वेश्चन ही नहीं था, इतना सारा पढ़ा दिया, कोई कोई डाउट ही नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स सारे टॉप होते हैं. चलो, so then I'll wind it up if you don't have any questions. चलो, ठीक है. And in case you need any assistance, we do have career counseling one-to-one. Then you have those mentoring program. Today, mentoring is very important. Mentoring in the sense how you should study, how you should go about, what you should do, how will you crack exam, those things. Apart from the regular coaching, वो तो एक अलग चलता ही चलता है. And obviously the NCERT extract books, which nobody has in India, and we are getting very good response, and therefore we are building it up gradually. And I believe by May we'll have for most of the subjects our NCERT extract. We are starting or already काफी बन गए हैं. So this is because of CUET we are doing the way the questions are coming there, because NCERT books are not easy to read. They go here and there. So that is why we introduce this concept. Chale. So anyone has any doubt if you want to ask? No. So should I wind up final? कोई और डाउट किसी का? नहीं. Thank you. So I'm winding it up then. If you don't have any doubt, then we'll wind it up. Okay, perfect.